Hello students, today we will discuss the next topic, that is phenols. What are phenols? Phenols are the compounds in which OH group is attached to aromatic ring. Here OH group is attached to aromatic ring. This is phenol compound. This is monohydric alcohol, as in this only one OH group is attached here. Depending upon the number of OH group, we can have mono, di, tri, hydric compound. Phenol is the compound in which one OH group is attached. If we have two OH groups and they are present ortho to each other, this compound is catechol. If two OH group we have and they are present meta to each other, that compound is known as resorcinol. And if we have two OH groups that are present para to each other, that compound is known as hydroxyquinone. This compound is catechol, resorcinol, and this is hydroquinone. Similarly, if we have three OH group attached to aromatic ring, suppose we have this compound. This compound is known as pyrogalone. Next, we have, along with OH group, if we have some other functional group attached, other groups are attached. Suppose you have read about cresol. Cresols are the compounds in which we have phenol ring and we have methyl group attached. This is orthocresol. If this methyl group is present at meta position, that is metacresol, and if it is present at para position, it is called as paracresol. Then we have next compound, salicylaldehyde. You have already studied about this. In this, on the phenol ring, we have aldehyde group, or its IUPAC name is 2-hydroxybenzaldehyde, because aldehyde group is preferred over OH in nomenclature, so this compound is 2-hydroxybenzaldehyde. But it is more famous due to its common name, that is salicylaldehyde. Next compound we have salicylic acid. Here we have 2-hydroxybenzoic acid. These are the various phenol compounds in which aromatic ring has one OH group directly attached to it. Phenol compounds are various uses. They are used in flavors, perfumes, mouthwashes. They are also act as antiseptic. Clove oil, this compound has phenol, that is eugenol, that act as antiseptic. Vanillin present in the oil of vanillin beans is also has phenolic ring in its molecules. Next is structure and bonding of these compounds. Structure and bonding. Now our OH group is attached to aromatic ring, and we know hybridization of this aromatic ring is sp2. And this oxygen has two lone pairs and two bonds. This oxygen has sp3 hybridization. sp3 hybrid orbit. We have 4 sp3 hybrid orbitals. 2 have lone pair. One has bond with H and other has bond with the sp2 orbital of the carbon, aromatic carbon. Now, if we see the charge, we know oxygen is more electronegative than carbon. So we have partial positive charge on this carbon and partial negative charge on this
oxygen. That's why this phenolic bond is CO bond is polar in nature. Since our oxygen is more electronegative, this OH bond easily breaks to give H positive ion. That is, these phenols compounds are also act as acid because that negative charge can be accommodated by oxygen and further get stabilized by the aromatic ring. Next we will discuss the method of preparation of various phenolic compounds. First method we have is fusion of alkalis of sulfonates. What are sulfonates? We have studied about sulfonic acid. Sulfonate are salt of sulfonic acid. Suppose we have this compound toluene SO3Na. That is, we have sodium toluene sulfonate. Sodium paratoluene sulfonate. These compounds, when we fuse these compounds with base at high temperature, base we will use here is NaOH. At high temperature, approximately 573 Kelvin to 623 Kelvin, we will get the phenol compounds. Now we get phenol here. Phenols are acidic compounds and sodium hydroxide is base. At this stage we will get the sodium phenoxide, that is salt. Because phenols are acids and they immediately react with sodium hydroxide base form salt. If we get the phenol, we have to treat it with acid, dilute acid. Then we will get the desired phenolic compounds. That is, if we have salt and we want acid compound, so we have to treat that salt with acid. If we have salt and we want base, so we have to treat that salt with the base. And we have to see if our compound formed is acidic in nature. अगर हमारा compound acidic nature का है और हम reaction condition में base use कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास salt बनेगा. Salt की हाइड्रोलिसिस से हमारे पास आगे compound एसिडिक डिजायर्ड कंपाउंड आ जाएगा. देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट. अब हमारे डाइजोनियम सॉल्ट क्या है? डाइजोनियम सॉल्ट हम कैसे बनाते हैं? कोई भी हमारे पास अमीन है, एरोमेटिक अमीन. When we treat this amine with nitrous acid HNO2 होता है. ये हमारा in situ सोडियम नाइट्राइट एंड HCl से बन जाता है. इसको जब हम नाइट्रस एसिड के साथ अमीन एनिलीन को ट्रीट करते हैं तो हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट आ जाते हैं. ये डाइजोनियम सॉल्ट्स हमारे अनस्टेबल होते हैं. 0 to 5 टेम्परेचर तक तो हमारे स्टेबल रहते हैं, बट अगर हमारा टेम्परेचर मोर देन 5 डिग्री हो जाए, ये इमीडिएटली हाइड्रोलिसिस करके हमें फिनोल कंपाउंड दे देते हैं. दैट मीन्स हमने डाइजोनियम सॉल्ट बनाया, उसको हमने कंडीशंस को थोड़ा हाई टेम्परेचर पे ले गए, मोर देन 5 डिग्री, तो हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग फिनोल कंपाउंड बन जाएंगे और हमारा जो N2 गैस है वो रिलीज हो जाएगी. देन उसके बाद हमारे पास बड़ा फेमस मेथड है डो प्रोसेस. जो इंडस्ट्रियल स्केल पे हमारी फिनोल की प्रिपरेशन है वो थ्रू डो प्रोसेस होती है. इस केस में हमारे पास अराइल हलाइड यूज होते हैं. इस केस में हम क्लोरोबेंजीन को जब बेस के साथ ट्रीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, तो हमारे पास फिनोल कंपाउंड बन जाते हैं. ये रिएक्शन हमारी थ्रू बेंजाइन इंटरमीडिएट होती है. अब इस केस में हमारे पास क्या होता है, हम क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं,
बेस के साथ बेस हमारा H पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट करेगा, दैट H पॉजिटिव यहाँ पे बॉन्ड बना देगा। इसके लिए भी आप बेटर है ये वाले H की बात करो, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड है ना, बेंजाइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, आइन हमारे पास यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है। ये H एक्सट्रैक्ट हुआ, हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अगर हम दिखाएं मैकेनिज्म, OH नेगेटिव ने ये H एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये नेगेटिव यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, ये ग्रुप हमारा निकल जाएगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया, दैट इज बेंजाइन इंटरमीडिएट हमारा आ जाएगा, ये हमारा बेंजाइन हो गया। नाउ बेंजाइन हमारा इंटरमीडिएट है, हाईली रिएक्टिव है, इमीडिएटली वो OH नेगेटिव जो हमने बेस यहाँ पे यूज करा है उसके साथ रिएक्ट करके हमें फिनोल मॉलिक्यूल दे देगा। इंडस्ट्रियल स्केल पे कमर्शियली जो हम यूज करते हैं, जो हमारी फिनोल है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन थ्रू बेंजाइन इंटरमीडिएट बन जाती है। अब हमारे पास है, अगर हमारे कोई भी एरोमेटिक हलाइड से विथड्रॉइंग ग्रुप लगाए, सपोज यहाँ पे मैंने एक विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, उस केस में मेरी रिएक्शन जो मैंने ऊपर वाले केस में करा ना, अकेला मेरा क्लोरोबेंजीन था, उस केस में मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड एट टेम्परेचर 623 to 320 यूज करना पड़ता है। बट जब मेरे पास कोई विथड्रॉइंग ग्रुप लग जाता है तो मेरी कंडीशन थोड़ी उस कंडीशन से माइल्डर हो जाती है, दैट इज मेरा यहाँ पे मुझे 50% NaOH, उस केस में मेरा टेम्परेचर 623 के आसपास था, यहाँ पे मेरा टेम्परेचर 433 केल्विन पे मेरे पास क्रॉसपॉन्डिंग पैरानाइट्रो फिनोल कंपाउंड बन जाए। अब अगर मेरा एक विथड्रॉइंग ग्रुप के बजाय 2 विथड्रॉइंग ग्रुप हो मेरे मॉलिक्यूल में, दैट इज इस केस में मेरे ऊपर वाली कंडीशन से भी थोड़ी माइल्डर कंडीशन चाहिए, दैट इज मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड की चाहिए, मेरे की जगह मेरा माइल्ड बेस सोडियम कार्बोनेट से भी काम चल जाएगा एंड टेम्परेचर मेरा और डाउन चला जाएगा। तो मेरा इस केस में इन तीनों केसेस में जो भी हम यूज करें, NaOH बेस यूज करें, तो मेरा यहाँ पे जो फिनॉक्साइड सोडियम पैनॉक्साइड बनेगा, सॉल्ट बनेगा, उस सॉल्ट की डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करके मेरी फिनोल कंपाउंड आएंगे। वो मैंने पीछे एक बार बता दिया, बार बार हम वो स्टेप नहीं दिखा रहे। तो इस केस में मेरे पास फिनोल कंपाउंड माइल्डर कंडीशन, दैट इज माइल्ड बेस एंड लो टेम्परेचर हो जाएगा। देन उसके बाद है, अगर मेरे पास ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड हलाइड्स है, दैट इज ऑर्थो 2,4,6 ट्राइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन कंपाउंड है, उस केस में मेरी ये रिएक्शन वाटर के साथ भी मेरा ये कंपाउंड हाइड्रोलाइज हो जाएगा एंड टेम्परेचर मेरा 323 केल्विन। तो मेरे पास क्रॉस बॉन्डिंग फिनोलिक कंपाउंड, दैट इज अगर मैंने डिफरेंट एरोमेटिक हलाइड से फिनोल बनानी है, जितने ज़्यादा मेरे विथड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे मेरी रिएक्शन उतनी ईजी हो जाएगी, उतनी मेरी फिनोल फॉर्मेशन ईजी हो जाएगी। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन और क्यूमीन। पहले तो हम वो क्यूमीन कैसे बनाएंगे, दिस इज हमारा नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन हमारे पास क्या कंपाउंड है, एरोमेटिक, फ्रीडल क्राफ्ट हमारी अल्काइलेशन हो रही है बेंजीन की प्रोपीन के साथ रिएक्शन और इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। फ्रीडल क्राफ्ट में हम करते हैं ना FeCl3 बेस एसिड हमारा होता है, तो इस केस में हमारे पास क्यूमीन कंपाउंड बनता है, दिस इज क्यूमीन कंपाउंड, आइसोप्रोपाइल बेंजीन और क्यूमीन। इन द प्रेजेंस ऑफ एरियल ऑक्सीजन ये कंपाउंड हमें क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड दे देते हैं, दिस इज क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड।
नाउ प्रोटोनेशन ऑफ दिस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड से हमें प्रोटोनेटेड क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मिल जाता है। ठीक, यहाँ पे इस ऑक्सीजन की हमारी प्रोटोनेशन होगी तो मेरे पास क्या कंपाउंड आ जाएगा, इमीडिएटली मेरा वाटर का लॉस होएगा। तो फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया वाटर के लॉस के बाद। देन उसके बाद मेरा फिनाइल ग्रुप ओ पे माइग्रेट हो जाएगा। दैट इज इस माइग्रेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल मेरा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब मेरा फिनाइल ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट हुआ, मेरी इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मेरा वाटर मॉलिक्यूल इस पे अटैक करेगा। दैट इज देन उसके बाद मेरा यहाँ पे लॉस ऑफ H पॉजिटिव होएगा। मेरे पास यहाँ पे कंपाउंड आ गया CH3OH CH3O C6H5। देन उसके बाद ये मॉलिक्यूल रीअरेंज करेगा, ये लोन पेयर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे, ये मेरे इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड मेरा ब्रेक हो जाएगा। दैट इज मेरे पास यहाँ पे एक तो एसीटोन मॉलिक्यूल आ गया प्लस मेरे पास फिनोल कंपाउंड, इट इज फिनोक्साइड आयन आ जाएगा, फिनोल कंपाउंड आ जाएगा। इन दिस वे क्यूमीन से मेरे पास फिनोल में आ जाएगा। हम एक बार फिर से मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। मेरे पास एरोमेटिक रिंग फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करके क्यूमीन कंपाउंड बनाएंगी, वो एरियल ऑक्सीडेशन करके क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनाएगा। प्रोटोनेशन से मेरे पास प्रोटोनेटेड क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनेगा, जो इमीडिएट वाटर लूज करके मेरे पास ये इंटरमीडिएट दे देगा। ये इंटरमीडिएट में मेरा फिनाइल शिफ्ट हुआ, मेरे पास कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, वाटर का अटैक होएगा, यहाँ पे मेरे पास ये मॉलिक्यूल आ गया, यहाँ से H पॉजिटिव का लॉस होके मेरे पास ये कंपाउंड आया। अब इस कंपाउंड में मेरे पास ऑक्सीजन यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगी और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, मेरे पास एसीटोन मॉलिक्यूल आ गया और साथ में मेरे पास फिनोल कंपाउंड आगे जाता है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेथड है डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोलिक एसिड, दैट इज डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोलिक एसिड। फिनोलिक एसिड मीन्स हमारे पास सैलिसिलिक एसिड आ गया या उसका सॉल्ट आ गया। इन कंपाउंड की डिकार्बोक्सिलेशन मीन्स लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लूज हो जाए तो मेरे पास फिनोल कंपाउंड ही बन जाएगा। कैसे होगी रिएक्शन, हम इसको बेस और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ फ्यूज करते हैं, हीट करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे क्रॉसबॉन्डिंग, वही मैं बेस यूज कर रही हूँ, मेरे पास फिनोल एसिडिक है, सोडियम सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट से मुझे अगर एसिड फ्री करवाना है तो मैं उसे डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करूँगी, मेरे पास यहाँ पे फिनोल कंपाउंड आ जाएगा। देन उसके बाद है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास क्या होते हैं, RMGX। दिस इज हमारा नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा यहाँ पे ARMGX हो गया, दैट इज मेरे पास उसकी एरोमेटिक रिंग है MgX है। उसकी जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो मेरे पास यहाँ पे OMGX आ जाता है, जो कि हाइड्रोलिसिस से OMGX है, हाइड्रोलिसिस हुई, मेरे पास फिनोल कंपाउंड आ गया। दैट इज ये वाला बॉन्ड है ना, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव, वाटर का H यहाँ पे चला गया, OH इधर चला गया, दैट इज मेरे पास फिनोल प्लस MgX OH बन जाएगा। तो ये सारे हमारे पास मेथड्स हैं फिनोल कंपाउंड की प्रिपरेशन।
देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फिनोल। सबसे पहले हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है फिजिकल स्टेट एंड कलर। फिजिकल स्टेट मेरे पास कंपाउंड, ये जो फिनोल कंपाउंड है लिक्विड होता है एंड इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वेरी लो होता है, मतलब अगर जैसे विंटर्स में हमारा टेम्परेचर डाउन चला जाता है, ये सॉलिडिफाई हो जाता है, अदरवाइज लिक्विड होता है। इट मीन्स ये कंपाउंड लिक्विड या सॉलिड नेचर में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, लिक्विड सॉलिड और लिक्विड स्टेट, और ये कंपाउंड कलरलेस होते हैं। बट विद टाइम और एरियल ऑक्सीडेशन ये कंपाउंड रेडिश ब्राउन हो जाते हैं कलर, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन विद एटमॉस्फेरिक एयर। पहले तो कलर, अगर मेरे पास प्योर फिनोल है, मेरे पास कलरलेस कंपाउंड है, बट विद टाइम अगर मैं उस फिनोल को थोड़ा टाइम पड़े रहने दूंगी तो ये कंपाउंड मेरे रेडिश टिंज में आ जाएंगे बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। अगर मेरे पास कंपाउंड्स में, जैसे हमने नाइट्रोफिनोल की बात करी, नाइट्रो ग्रुप लगा है तो ये कंपाउंड्स मेरे यूजली ब्राउन कलर के होते हैं। देन उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट्स हमारे किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं? फिनोल, जैसे एल्कोहल में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, इन कंपाउंड्स में भी हमारी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दैट इज टू डिफरेंट फिनोल मॉलिक्यूल्स के बीच में मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। यहाँ पे एच आएगा इसका। ऐसे अगले वाले के साथ मेरे पास इन मॉलिक्यूल्स में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। किसी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो उसके बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। दैट मीन्स ये कंपाउंड किन के साथ अगर हम कंपेयर करें, सेम मॉलिक्यूलर वेट वाले कोई और कंपाउंड, सपोज मैंने एरोमेटिक हलाइड्स के साथ कंपैरिजन करा, Cl मॉलिक्यूल के साथ, तो फिनोल था, तो फिनोल्स के बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर बॉइलिंग पॉइंट होता है एज कंपेयर टू ये कंपाउंड, बिकॉज इस केस में ऐसा कोई भी फैक्टर इसके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, अब ये कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं तो वाटर सॉल्युबल होने चाहिए, बट इनकी सॉल्युबिलिटी एज कंपेयर टू एल्कोहल, एज कंपेयर टू alcohol, these compounds, that is phenols, these phenols has less solubility in water. क्यों ऐसा हो रहा है? Because of more hydrocarbon part. जो मेरा फिनोल कंपाउंड है वो वार्म करने पे तो वाटर सॉल्युबल हो जाता है, बट लो टेम्परेचर पे वो मेरा सॉल्युबल नहीं होता। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी, बट एज कम्पेयर टू एल्कोहल इनकी सॉल्युबिलिटी वेरी स्मॉल होती है। वाटर में एल्कोहल कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज है फिनोल मॉलिक्यूल्स की। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एसिडिटी ऑफ फिनोल। कोई भी कंपाउंड एसिडिक कब बिहेव करता है? जब वो H पॉजिटिव दे दे। एल्कोहल्स के केस में हमने करा था, अगर ये कंपाउंड H पॉजिटिव दे रहा है, अगर फिनोल के केस में भी मुझे H पॉजिटिव मिल रहा है
दिस इज मेरे पास यहाँ पे फिनोक्साइड आयन बनेगा और H पॉजिटिव बनेगा। अगर मुझे H पॉजिटिव मिल रहा है तो ये कंपाउंड मेरे एसिडिक होंगे। कोई भी कंपाउंड एसिडिक है दैट मीन्स इट कैन गिव H पॉजिटिव आयन। कोई कंपाउंड H पॉजिटिव इजीली कब देगा? अगर H पॉजिटिव वो इजीली दे रहा है तो ये रिएक्टेंट मेरा इन दोनों में इजीली आयोनाइज होना चाहिए। सिमिलरली फिनोल्स इन दोनों में आयोनाइज होने चाहिए। अब अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं, जो मेरा इजीली एल्कोक्साइड या फिनोक्साइड आयन दोनों में से आयोनाइज हो रहा है वो मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। इट मीन्स अगर मुझे एसिडिटी फिनोल और एल्कोहल की कंपेयर करनी है तो मुझे इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी पड़ेगी। जो मेरा ज़्यादा दोनों में से स्टेबल होएगा उस केस में मेरा रिएक्टेंट इजीली डिसोसिएट हो जाएगा, वो मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा। अब ये दोनों मेरी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है, इनकी हम स्टेबिलिटी देखेंगे कौन ज़्यादा स्टेबल है। कोई भी चार्ज स्पीशीज है अगर उस पर वो चार्ज इंक्रीज होता है तो अनस्टेबल होता है, डिक्रीज होता है तो वो स्टेबल होता है। सबसे पहले हम एल्कोहल के एल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी देखेंगे। मेरे पास R O नेगेटिव है। R मेरा अल्काइल ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है। डोनेटिंग ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, O पे नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज ऑफ नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी मीन्स अनस्टेबल हो रहा है। फिनोक्साइड आयन के केस में हम क्या कहेंगे देख लेते हैं। अभी स्टेबिलिटी हमारे पास क्या है, मेरे पास O नेगेटिव है। O नेगेटिव यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, मेरे पास ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रही है। दैट मीन्स O का नेगेटिव चार्ज मेरा डिस्पर्स हो रहा है। ऐसी मेरी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये नेगेटिव यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, पैरा पोजीशन पे हमारे पास आ जाएगा। O का नेगेटिव चार्ज मेरा डिस्पर्स हो रहा है। मेरे पास बहुत सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रही है। मोर इज द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबिलिटी। तो मेरे पास जो फिनोक्साइड आयन है वो स्टेबल हो रहा है बिकॉज उसका नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है। एल्कोक्साइड आयन का नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई हो रहा है। तो मेरे पास दो नेगेटिव चार्ज एल्कोक्साइड आयन फिनोक्साइड आयन है, ये अनस्टेबल हो गया और ये मेरा स्टेबलाइज हो रहा है, स्टेबल हो गया। तो अब एक अनस्टेबल है एक स्टेबल है, तो मेरा कौन सा रिएक्टेंट इजीली आयनाइज होएगा? जहाँ पे स्टेबल मेरे पास आ रहा है मॉलिक्यूल, तो मेरा फिनोल मॉलिक्यूल इजीली डिसोसिएट होंगे। इजीली डिसोसिएट होंगे तो मेरा H पॉजिटिव इजीली रिलीज हो जाएगा। तो मेरे पास अगर मैं एसिडिक करेक्टर कंपेयर करूँ या एसिडिक करेक्टर की बात करूँ तो मेरी फिनोल्स एसिडिक नेचर की हैं और एज कंपेयर टू एल्कोहल फिनोल्स आर मोर एसिडिक इन नेचर। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल। इफेक्ट ऑफ अब मेरे पास डोनेटिंग एंड विथड्रॉइंग ग्रुप्स में से कौन से ग्रुप मेरी फिनोल की एसिडिटी इंक्रीज कर देंगे? हम बार बार कह रहे हैं अगर मेरा फिनोक्साइड बन रहा है, अगर फिनोक्साइड स्टेबलाइज होएगा तो एसिडिटी इंक्रीज होएगी, फिनोक्साइड आयन अनस्टेबल होएगा तो मेरे पास एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब मेरे पास फिनोक्साइड आयन है और एरोमेटिक रिंग पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड विथड्रॉइंग ग्रुप कोई भी हो सकते हैं। सपोज मेरे पास यहाँ पे कोई भी विथड्रॉइंग ग्रुप लग गया, विथड्रॉइंग ग्रुप लग गया, सपोज मैं नाइट्रो की बात करूँ, ऑर्थो या पैरा किसी भी पोजीशन पे, अगर मेरे पास विथड्रॉइंग ग्रुप लग गया तो नेगेटिव चार्ज मेरा और डिस्पर्स हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आएगी, ऑर्थो पोजीशन पे जब मेरे पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है, दिट इज मैं यहाँ पे दिखाऊंगी
ये डबल बॉन्ड बना देगा, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस केस में यहाँ डबल बॉन्ड बना, पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ गया, देन मेरी फोर्थो पोजीशन पे जहाँ पे नाइट्रो ग्रुप कोई भी विथड्रॉइंग या डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, नेगेटिव चार्ज आ गया, दिट इज अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा और O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इट मीन्स मेरे पास इस केस में एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गई। मोर इज द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबिलिटी। तो मेरे पास जो विथड्रॉइंग ग्रुप है नेगेटिव चार्ज को और ज़्यादा एक्सटेंड तक डिस्पर्स कर देते हैं, तो मेरे पास एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स अगर मेरी फिनोल में डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो मेरी एसिडिटी डिक्रीज होएगी, विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो मेरी एसिडिटी इंक्रीज होएगी। यहाँ पे हमने विथड्रॉइंग ग्रुप, नाइट्रो मेरा विथड्रॉइंग ग्रुप है, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सायानाइड, ये सारे मेरे विथड्रॉइंग ग्रुप हैं। अगर मेरी फिनोल मॉलिक्यूल पे ये कोई भी ग्रुप लगा हुआ है तो मेरी एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। देन इसके ऑपोजिट मेरे डोनेटिंग ग्रुप अगर आ जाते हैं, डोनेटिंग ग्रुप में हमारे पास कौन सा ग्रुप हो सकता है? सपोज मेरे पास एल्कोक्सी ग्रुप है, ये मेरी रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो O पे नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो मेरी वो स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगी। तो डोनेटिंग ग्रुप मेरी फिनोल्स की एसिडिटी डिक्रीज कर देंगे। अब इस केस में मेरे पास अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो मेरे पास ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ गया, अगले वाले केस में मेरे पास पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब मेरे पास पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है और वहां पे मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे तो मेरे पास ये स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल हो जाएगी। अनस्टेबल हो गई है तो मेरे पास ये मॉलिक्यूल्स की एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। दैट इज डोनेटिंग ग्रुप फिनोल पे आ रहे हैं, एसिडिटी डिक्रीज होएगी, विथड्रॉइंग ग्रुप आ रहे हैं तो एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी।